Good evening, everyone. Welcome to today's session. I'm Ruchita, your host, and tonight we bring to you an insightful session where we'll be discussing all about weight management. What, when, and how much to eat, and what is the role of nutrition in weight loss. Without further ado, let's jump right in. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He's an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group and a flag bearer on the journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him on this virtual stage. Over to you, sir. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I just hope that everybody had the dinner early and done some exercise. In fact, if you've been following the WhatsApp group, there was a very good observation by somebody that, how come his fat increased the next day, whereas actually his weight has gone down. Now, the weight going down doesn't necessarily mean that the fat goes down. And the whole principle behind the circadian rhythm is because of this particular point, that you need to understand that if you delay your dinner, anything past 6:30 or 7, the food that you eat is very likely to get converted into fat. And you need to understand this, that even if you take, high quality supplements, even if you, do all the right things like exercise and all, you will end up putting more fat. And if you are looking at your good holistic health, you know that fat is your enemy. If you're a male, then your fat percentage should be between 10 and 20%. If you're a female, it should be between 20 and 30%. Anything outside these figures tells you that you need to work hard towards lowering fat. And one of the things that will help you to lower fat is to ensure that you have your dinner early. All right. And I hope this observation will motivate other people to do what we are, advising and, saying from, such a long time, have your dinner early, have your dinner early. Because it's only when you actually see the observation and you see the numbers in front of you, you realize that how valuable this just one aspect of good holistic health is. Most people end up, going to late night parties, eat at night, eat at, the younger generation, has got, Zomato and Swiggy and all these kind of apps now by which they can, order late night food. And that really hurts because you are giving your lysosomes no chance to eat away the bad cells from your body. So please, understand this particular aspect and, do this seriously. Try a serious attempt of, finishing your dinner early, because this is one thing that will really improve your holistic health. The second point I want to make today is, over just a period of time, slowly and slowly, black plastic containers have started coming into our food chain. You order food from any place today, you will find a nice, swanky looking black box. Now, please understand that that black box may not necessarily, have all the necessities of a good food grade plastic. And that's really harmful to your health. Also, the black box is not recyclable, creating a lot of plastic and damaging the environment. So let us try and stay away from black boxes and try and build a good holistic community, which focuses on good health and looking at the planet in total. Today you're going to be listening from somebody who's worked very hard on his own holistic health, and hence today all of a sudden he realizes that he's getting older. When everybody around him is falling sick, he's not falling sick.
And that's the beauty of, looking after holistic health. Holistic health is not about building, big muscles. Although muscles, we always say, muscles is better than building fat. But holistic health is something that, will keep you healthy for a long time. It will give you the difference between your lifespan and your health span. So listen to Raj very carefully, because what he has said will have a significant impact on your overall holistic health. Over to you, Raj. Thank you very much, Farooq, and thanks for all those insight. And you mentioned holistic health again and again. So, ladies and gentlemen, good evening. I'm Raj, connecting to you all from Gurgaon. And today morning, I was speaking to Farooq, and we were discussing a health case. And this case was something regarding a knee thing. मतलब उनको डॉक्टर ने knee replacement बोला था. And I was like telling Farooq, okay, how do we, I know the answer, but how do I communicate? And Farooq very beautifully said one line that, one needs to learn to focus on holistic health. Because जब तक आप holistic health पे नहीं focus करोगे, ये छोटे छोटे जो elements है, be it diabetes, be it liver issue, be it your knee replacement का issue, all these things will be taken care of if one start focusing on holistic health. And last evening, when I was speaking to this lady who had this issue, and मैं उनको बोल रहा था कि क्यों why it is important for her to bring down the weight and all those stuff, and she's a professor in a college, and she said that I'm surprised that I never heard all these things या मुझे पता ही नहीं था कि there is this way of life that you need to have. Now, अभी जब फरूक एंड कर रहे थे and I was smiling, and the reason I was smiling was we are so excited because we are bringing in this positive change in the society where अभी जो फरूक black plastic container के बारे में बात कर रहे थे, finally there is this subject which is now people have started taking in interest and ownership about this whole subject, that how we can take charge of our health. and जो फरूक का मिशन है, हर घर तंदुरुस्त हर घर मेडिसिन फ्री, या कैसे ये धीरे धीरे ये स्पाइरल अब बड़ा बनेगा। जो भी चीज आप यहाँ पे सुनते हो, जो भी आप फैक्ट्स यहाँ पे देखते हो, Farooq, जो भी फैक्ट्स आप यहाँ पे देखते हैं, ये पूरे जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं। दिस इज जस्ट नॉट एनी अदर प्रेजेंटेशन। आई मीन आई होप यू हर्ड द बैकग्राउंड ऑफ फारूक, ही हैड 40 इयर्स ऑफ एक्टिव स्पोर्टिंग करियर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार किसी भी हेल्थ जर्नी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम सुन किसकी फिलोसफी Raj, sorry you got muted. If you can just unmute yourself, please. Okay, thank you. Today we are going to be talking about weight management and why it is important. And बहुत बार आप ये चीज़ सुनोगे कि वेट के लिए कोई जिम जा रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई डाइटिशियन फॉलो कर रहा है, कोई डाइट्स फॉलो कर रहा है। बट होलिस्टिक हेल्थ, और होलिस्टिक हेल्थ में वेट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? आज आप ये सारी चीज़ यहाँ पे देखोगे। Recently I met a friend of mine, ex-colleague, and because we all are now nearing around 48-50 years में अब हम nearing कर रहे हैं, and one of the point that this gentleman made was, बहुत सारी चीज़ें destiny के ऊपर भी depend करती है। And I said, yeah, I completely agree with destiny, but वो destiny तक पहुंचने का जो approach है वो हमारे हाथ में है। So, as Farooq always says, that aging is a natural process, but aging healthy is a matter of choice. The same way, weight and weight management has become a big, big, big chronic issue these days. आप किधर भी अपने शहर में, अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में किधर भी देख लीजिए, वेरी रेयरली यू विल फाइंड ये परफेक्ट फिट एंड ऑल दो स्टफ। एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? सो आज हम जो वेट मैनेजमेंट पे जो कवर करेंगे, आप देखेंगे आज सारे होलिस्टिक एलिमेंट्स इसके कवर होंगे, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस पॉइंट टुडे, एंड व्हाई इट इज बिकम द नीड ऑफ द आवर, राइट? So, what are the factors that contribute to overweight and obesity? कई बार we are too harsh on ourselves कि नहीं नहीं हम शायद ज़्यादा खा रहे हैं, हम कम खा रहे हैं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, but scientifically if you see, there are a lot of factors that contribute to overweight and obesity. And जब तक आप input parameter पे work नहीं करोगे, there is no result. That output result that you get will be very very short term. So sometimes it is genetic, राइट? बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये हमारे फैमिली में हेरिडेटरी है या जेनेटिक है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जेनेटिक है, बट उसको ट्रिगर क्या करता है? उसको ट्रिगर हमारे लाइफस्टाइल, हमारे हैबिट्स ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फैमिली वी हैड दिस क्रॉनिक इशू ऑफ ऑप्टिक नर्व डिजनरेशन। सो
आई वॉज अवेयर कि हमारे फैमिली में है ये चीज होगी, बट अगर मैं उसको अपने लाइफ स्टाइल से, आई वॉज मोर अवेयर अबाउट दिस होल सब्जेक्ट, आई वॉज मोर डेलिबरेट अबाउट दिस होल सब्जेक्ट। ये जो ग्लासेस भी है, दिस इज जस्ट लाइक रीडिंग ग्लासेस। सो व्हाट आई मीन टू से इज, समटाइम कोई चीज अगर आपके जेनेटिक में है, आप उसको भी काउंटर कर सकते हो जस्ट बाय मेकिंग द राइट हैबिट्स एंड राइट चॉइसेस दैट वी मेक। Health conditions, not getting good quality sleep, sleep is one of a very very big factors, जिसके वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज की तारीख में हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट है स्लीप। कोविड के पहले जो नंबर ऑफ स्लीप आवर्स हुआ करता था एवरेज, दैट हैज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड पोस्ट कोविड। नाउ पीपल आर नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। आपकी बॉडी थक जा रही है, बॉडी नींद पे जा रही है, लेकिन ब्रेन इतना एक्टिव है कि जो साउंड स्लीप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब मैंने अपने लिए मेजर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, डेलिबरेटली व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड डेलिबरेटली अवेयर, इसको जब कैलकुलेट किया था, माय फिजिकल एक्टिविटी पर डे वाज 400 मीटर to 600 meter, that's it. Right from the time I would get up till the time I go to bed, मेरा जो दिन भर का जो फिजिकल मूवमेंट था, including my movements inside my office, was hardly, total adding up put together was 700 meters. Right? What is the lifestyle choices that we make? Poor gut health. Gut is the second main element. We are very fortunate that is पूरे जो सेशंस होते हैं, नॉलेज सेशन, उसमें गट हेल्थ को सेपरेटली कवर किया गया है। आज भी आप इसके बारे में थोड़ा बहुत देखोगे। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, राइट? There is a big debate. Is brown bread good or white bread good? Is multigrain bread good or this bread good? You know? So ये जो debates है, eating habits, ये क्या है? मतलब, and how they influence our health standards. By the way, none of the bread is good, right? Nutrient deficiency, a very, very important factor. Uh, our population has gone, like almost India has a population of 140 crore. Now imagine करिए हमारे agricultural practices, the nutritional content in the food, has it gone up or gone down? I mean, definitely the nutrition content has gone down. Now ऐसे सिनेरियो में जब आप डाइट्स प्रोग्राम पे जाते हो, ऑलरेडी द फूड कंटेंट इज गोइंग डाउन, एंड आप आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को वो राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, आई मीन, we all know the stress levels that we have, right? Now stress हमारे cortisol steroids को ऊपर लेके जाता है, and इसके वजह से हमारा वेट भी ऊपर जाता है। मेडिसिन, definitely medical science has done a lot of advancement, the lifespan has gone up, but what about the health span, right? मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट से बहुत सारा वेट इश्यूज होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट वी हैव नाउ, ऑल दिस फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट टू आर ओबेसिटी, जिसके वजह से ओबेसिटी होता है, ओवरवेट होता है, राइट? Now, let's see some unknown facts. India has the third largest obese population in the world after US and China, as per the World Health estimates. China definitely, it might be obese, but अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, तो चाइना का जो प्रोटीन कंटेंट है, दैट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू अस, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ सेविंग एलिमेंट फॉर चाइनीज। बट अगर आप इंडिया में देखिए, सो हमारे जो क्वालिटी ऑफ फूड दैट वी गेट, the affordability factor and the other elements, we are very less, हमारा प्रोटीन कंजम्पशन कंपेरेटिवली बहुत कम है। 1 out of 4 women and 1 out of 5 men are overweight in India. एंड ये फिगर यही नहीं है, आई एम श्योर जब तक ये फिगर को, ये स्लाइड बनी होगी, उसके 6 महीने बाद अगर आप देखेंगे, तो ये फिगर्स डे बाय डे ये चेंज हो रहा है। आप अपने सोसाइटी में देखिए, अपने बच्चों के स्कूल में देखिए, अपने ऑफिस में देखिए, वेरी, आप वो जो स्लिम लीन जो बॉडी आप देखते हैं, बहुत ही कम अब देखने को मिलता है। ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे, तो ये सारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। Annual increase in adult obesity in India is between 2020 and 2035 is like 5.2%, right? Now, how do we measure this index, right? मतलब क्या सिर्फ weighing scale पे खड़े हो जाना ही सब कुछ है? और अगर हम ठीक दिख रहे हैं, तो क्या हम, मतलब, आर वी ओबीस और वी आर फिट? बहुत बार ये होता है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देख लेते हैं कि अगर हमारा थोड़ा बहुत ओवरवेट भी होता है, तो हमें लगता है नहीं नहीं, कंपेरेटिवली तो हम ठीक हैं। सो
ये कुछ फिगर्स हैं जिसके बेसिस पे, विच इज़ लाइक बॉडी मास इंडेक्स, इससे मेजर होता है दैट आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए. नाउ आइडियली इफ यू आर लेस देन, इफ योर BMI इज लेस देन 18.5%, you are like underweight. The normal range is something, it needs to be less than 23. That's normal. Overweight is anything between 25 to 29.9. That's overweight. And अगर आप ओबेसिटी देखेंगे तो एनीथिंग लाइक विच इज़ ग्रेटर देन 30 इज ओबीस कैटेगरी. ना अगर आप इसमें देखिए तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है वर्सेस एशिया पैसिफिक का, देर इज अ डिफरेंस इन द figures over there, because what they figured out that even in Asia Pacific, even a person with a BMI of 25 was getting a cardiac arrest. So what they realized that एशिया का जो बॉडी टाइप है, जो हमारे जो सारे जो फूड हैबिट्स है, उसके वजह से द नॉर्मल कैटेगरी रेंज वॉज लेस देन 23 फॉर एशिया पैसिफिक पीपल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो what should be the right weight? 23 मल्टीप्लाई बाय योर हाइट इन सेंटीमीटर, उसको डिवाइड बाय 100 कर लीजिए. सपोज किसी की हाइट 165 है, सो 23 इंटू 1.65 इंटू 1.65 शुड बी योर आइडियल बॉडी वेट, राइट? सो क्या होता है अगर हमारा बॉडी ओवरवेट है, और क्या क्या इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को ना. ये जो आप लेफ्ट में जो आप फिगर देख रहे, जो दो आप इमेज देख रहे हो ऑरेंज में, इन दोनों का जो BMI इंडेक्स है वो सेम है. यू माइट बी सीइंग ओवर हियर कि ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज स्लाइटली मोर ओबीस कंपेयर टू द पर्सन ऑन द राइट हैंड साइड. ये दोनों का जो स्टैट्स है, जो BMI है, वो सेम है. तो क्या सिर्फ BMI ही पैरामीटर है जो वेट के लिए इंपॉर्टेंट है? नो, BMI नहीं है, फैट परसेंटेज जो अभी फारूक जिसके बारे में बता रहे थे, राइट? आपका वेस्ट टू हिस हिप रेशियो भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेस्ट है और जो आपका हिप रेशियो है, वो रेशियो क्या कहता है. सो मसल परसेंटेज, फैट परसेंटेज, डेफिनेटली देर आर सम अदर पैरामीटर्स ऑल्सो जो ये एक प्रॉपर वेट को जो कंट्रीब्यूट करती है. नाउ आप ये जो लेफ्ट में जो इमेज देख रहे हैं, ऑल्दो द बोथ बोथ का अगर अज्यूम करिए कि BMI सेम है, जो येलो इस शेड आप देख रहे हो दैट इज द फैट परसेंटेज ऑफ दिस पर्सन. और बिकॉज ऑफ दैट ओवर फैट, ऑल्दो द वेट इज सेम बट द फैट परसेंटेज इज मोर. इसके लिए अगर आप देखोगे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो इन टर्म्स ऑफ इंचेस is more compared to the person on the right. सेकेंडली अगर आप इसमें ध्यान से देखिए, जो बोन है, जो बोन की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है. सो डिस्पाइट हैविंग द सेम वेट एंड द सेम BMI, नेसेसरी नहीं है कि आप फिट हो, राइट? सो ये कुछ और पैरामीटर्स है जो एक्सप्लेन करता है दैट व्हाट शुड बी योर आइडियल वेट एंड योर आइडियल नंबर्स जो आपके होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए. नाउ व्हाट आर सम हिडन डेंजर्स ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी? यू नो, anything that is extra on your body will put the pressure on your heart. It will put the pressure on your vital organ. It is going to have this diabetes and all those stuff. It will put a pressure on your knee, and you might have a knee issue and all those stuff, because you will face issues related to fatigue and pain. You will face issues related to your liver health. So you know, अपने आप में अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन दिस इज द डोरवे टू ऑल द इश्यूज जो यहीं से निकल के जाती है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बी इट कार्डियोवास्कुलर, बी इट डायबिटीज, बी इट योर स्केलेटन स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्स. बहुत बार आप सुनेंगे किसी को इधर पेन हो रहा है, किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है, किसी को आर्म एरिया में पेन हो रहा है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हार्मोनल डिसऑर्डर्स, PCOS, PCOD, थायराइड, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, यू नेम इट, और वो सब यहीं से निकल के शुरुआत होती है. सो हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. एंड यू नो, सिर्फ वेट ही कम कर लेना आंसर नहीं है, बिकॉज अगर आपने वेट कम कर लिया विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज अगेन आप बाउंस बैक कर जाओगे, और जब आप दोबारा बाउंस बैक करोगे और आप गलती जाओगे, बहुत ज्यादा नहीं होगे. सो व्हाट आर द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस वेट? एक बार मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि यार इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और वहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ था 14.5 किलो का. मैंने उस इंसान को पकड़ा दिया वो सिलेंडर, और मैंने बोला आप इमेजिन करिए आप ये रात दिन अपने शरीर पे लेके घूम रहे हो, अगर ये 15 किलो हल्का हो जाएगा तो हाउ गुड यू विल फील. फर्ज करके देखिए, आई मीन फर्ज करके देखिए कि इफ यू नीड टू रिड्यूस योर वेट बाई 15 kgs, अपने घर में नॉर्मली पीपल हैव गैस पाइपलाइन दिस डेज, बट इमेजिन करिए आप एक 15 किलो का बैग उठा के देखिए, आप उसको रख दे तो हाउ लाइटर एंड हाउ बेटर यू विल फील. नाउ इमेजिन द प्रेशर दैट इट इज पुटिंग ऑन योर हार्ट एंड द वाइटल ऑर्गन. So what are the physical consequences? Low fitness level,
रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत फ्रीली और आराम से नहीं होगी, यू विल फील फटीग एंड लेथार्जी, राइट? दिस आर द सम ऑफ द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू फेस. व्हाट आर द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस? मूड फ्लक्चुएशंस, body image issues, right? Your confidence will definitely be low. Socio and economic burden, you don't feel good about yourself. The motivation level is low and your quality of life is not great. फर्ज करके देखिए, एक बीमार इंसान ज्यादा मोटिवेटेड रहता है या एक फिट इंसान ज्यादा मोटिवेटेड रहता है? लाइफ के ड्रीम किसके ज्यादा रहते हैं? लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक के साथ कौन देता है? नॉट अ सिक पर्सन और अ हेल्दी पर्सन, अ फिट पर्सन और अ नॉट सो फिट पर्सन. सो देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज जो साइकोलॉजिकल भी इन सब चीज के वजह से होती है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी वेट? जो मैंने बोला है उसका उल्टा, वो सब अच्छा आपके साथ होएगा. सो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपका मेंटल और मूड हेल्थ बहुत अच्छा होगा, आपके एनर्जी लेवल्स परफेक्ट होंगे, फिजिकल मोबिलिटी अच्छा होएगा, और आपके जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होंगे वो एकदम ठीक होंगे. माई डैड वॉज इन, जब वो रिटायर हो रहे थे तो मैं ये देख रहा था नॉर्मली गाँव में, और ये वो चीज़ कि बाई द टाइम दे रीच द एज 60, आप लाइफ में गिव अप करना शुरू हो जाते हो, आप एक्सेप्ट करने लगते हो कि डायबिटीज तो होगी, ये तो होगा, वो तो होगा. बट गॉड क्रिएटेड अस टू लिव अ लाइफ अप टिल 120 ईयर्स. ना अगर 120 ईयर्स की एज तक टेक्निकली हमें जीना है, हाउ कैन वी गिव अप at half the milestone, which is around 60 years of age? So it is very very important to understand कि आपकी लाइफ स्पैन तो है, बट कि आपकी हेल्थ स्पैन उसको मैच कर रही है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज, आप इसमें कहीं से भी किसी भी फैक्टर के साथ आप आइए, you will see that your overall holistic health is changing and it is improving. That is the best part about this whole thing, right? Now when you eat also makes a big difference to your not only to your weight, in fact to your overall health. अभी फारूक थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लेट नाइट डिनर करने से फैट परसेंटेज कैसे ऊपर जाता है. बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते और वो उस छोटे से गोल जो वेट है उसी के पीछे लगते हैं ना. अगर आप देखेंगे बॉडी वेट एडोपोसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आप ये सारी चीज़ें को देखेंगे, इसका बहुत बड़ा सर्काडियन साइकिल के ऊपर impact पड़ता है. Circadian cycle means what time are you eating? Now, is your food pattern between 6 a.m. to 6 p.m. or is your food pattern like any time, like any time? आप कभी भी शुरू होते हो और रात तक, जब तक खा खा के हम थक नहीं जाते हैं तब तक आप खाते हैं. सो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग वर्सेस राउंड द क्लॉक ईटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? नाउ in our program, it is very very important to understand that why morning nutrition is important in weight management and in your overall health. We've seen a lot of people जो morning breakfast को focus नहीं करते हैं. Either they will start with a couple of कुछ रस खा लेते हैं, कुछ nuts खा लेते हैं, coffee, tea, green tea, and that's their breakfast. Especially a lot of people who are in a busy schedule life है, या आप टीचिंग प्रोफेशन में, या आप एक ऐसे जॉब में है जहाँ पे मॉर्निंग को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड यू फील दैट मॉर्निंग स्किप करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस होल प्रोग्राम इज द फोकस ऑन मॉर्निंग न्यूट्रिशन. ऑल्दो इसके बारे में अलग सब्जेक्ट है, आज मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा, ये एक अलग टॉपिक है जो हम इसको कवर करते हैं और करेंगे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड अ प्रॉपर फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट इज breakfast. Now it provides you all the essential nutrients in the morning. It triggers the thermogenesis and kickstarts the metabolism, and it helps in maintaining your blood sugar levels correct. सो जो हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद when we go to sleep there is a fast, and morning में when you are eating you are breaking that fast. मॉर्निंग में it's more like जब हम एक कार को स्टार्ट करते हैं, it consumes a lot of energy that time. That's how you start your morning. And hence it is very very important that your nutrient in your morning breakfast needs to be absolutely at the optimum level. And जो भी आप खा रहे हो, it needs to be a nutritious breakfast. Your protein content in your breakfast, your omega-3 fatty acids content in your breakfast, your vitamin mineral content in your breakfast should be absolutely perfect. This is one key element. अगर लोग इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर जाएं, they will find that their health is absolutely perfect. When I was a kid, there was only one rule in our house. We were never allowed, and even my dad would never leave the house without having a proper breakfast. So that was the fundamental on which we were brought up. And अगर आप पुराने जमाने में देखिए, this is how people used to start their day.
But today, in this fast-paced life, somewhere we have started compromising on this breakfast, and we have started giving more importance to the dinner, because we feel that's the family get-together time, that's the family time. डिनर ही एक ऐसा टाइम है जब सब मिलते हैं. बट ये उल्टा हो गया है. ये इट नीड्स टू बी द अदर वे अराउंड. वी नीड टू गिव मोर focus to breakfast, and the right set needs to be, the right practices needs to be followed at night. Now, the second most important element in this weight loss journey, or a weight maintenance journey, or weight management journey, is eat. How much do you eat? Right now, इधर ईट क्या है? इट इज एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस. तो अगर आप देखिए, एक वेट मैनेजमेंट का सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आपका कैलोरी इनटेक शुड बी लेस देन द कैलोरी दैट यू आर बर्निंग. राइट, ये सिंपल है. नाउ जो भी हम खा रहे हैं, जो कैलोरी इनटेक है, उससे कैलोरी जो हम बर्न कर रहे हैं, इनटेक शुड बी लेस देन द बर्न. सो ऑब्वियसली इफ द फिगर इज नेगेटिव, आपका जो वेट है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा. बट जो कैलोरी बर्न हम करते हैं, वो बर्न कैसे करते हैं? जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 70%. सो जब आप कराड़ा स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक बीएमआर फिगर आता है कि वो क्या है. किसी के लिए 1350 है, 1400 है, 2000 है, 1700 है. इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है अपने, जो अपना जो रूटीन करना है, जो वो काम करते हैं, उसके लिए उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है. एंड दिस फिगर इज नेवर सेम फॉर एवरीबडी. इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड ईट. नाउ ईट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओनली 5%. ईट वो है जो आप एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज आप करने जाते हो. सपोज आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज करते हैं. ये जो कंट्रीब्यूट करता है, ये कैलोरी बर्न में करीबन 5% कंट्रीब्यूट करता है. नीड जो है, नीड ये है जो थ्रू आउट द डे एक्टिविटी जो हम बाई डिफॉल्ट करते हैं, जैसे लाइक मूविंग फ्रॉम दिस रूम टू दैट रूम, गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब जो हम इधर उधर जो मूव करते रहते हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 15%. what we eat, that contributes to almost 10%. सो यहाँ पे वो बात आ जाती है कि आप मानिए कि आप, फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग 2 slices ऑफ ब्रेड वर्सेस यू आर हैविंग सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. probably the calorie intake in both might be the same, the calorie element. बट एक प्रोसेस फूड है, अगला रॉ फूड है. सो जो रॉ है वो बर्न करने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग आलू पराठा versus, instead of aloo, suppose you have added some vegetables, you have added some paneer, you have added some sattu in it, for example. Now आपने जो उसकी जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, आपने उसको इंप्रूव कर दिया. सो यू विल ऑल्सो सी, यू विल ऑल्सो लर्न इन दिस प्रोग्राम इज द चॉइसेस दैट यू मेक ऑल्सो contributes to the right thing. आप देखेंगे there is a very big emphasis on the fruits that we eat and the salads that we eat over here. Because इससे क्या होता है, आपका पोर्शन आप कम नहीं कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ फूड आप कम नहीं कर रहे हो, बट द राइट सेट ऑफ फूड आप ईट कर रहे खा रहे हो. एंड दैट इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 10%, विच इज थर्मिक इफेक्ट. So this is a very, very important thing that you will learn, understand in this WhatsApp community when you post your food plates. as आप उसको कैसे, आप उस फूड की थर्मिक इफेक्ट को improve कर सकते हो. And when you follow all these habits, it is not a 1 day, 1 month, or a 3 month, or a 6 month program. It is a lifetime habits that you develop. और जब आप lifetime habit जब आप develop कर लेते हो, so आप उसको जिंदगी भर कंटिन्यू कर सकते हो. एंड आप देखोगे आपका जो हेल्थ स्पैन है, वो आपके लाइफ स्पैन और दोनों को मैच करने लगेगा. वर्सेस हम जो क्रैश कोर्स करते हैं, दोस क्रैश कोर्सेस यू कैंट फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो जैसे आप उस क्रैश कोर्स से बाहर आते हो, यू बाउंस बैक टू द सेम ओरिजिनल थिंग. So it is very, very important to build the right habits, because that habit is what is going to stay with you for the rest of your life. Right? What do you eat? देखिए, जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रेंथ इस चीज से डिपेंड करती है कि इसमें डाला क्या गया है, इसका इनपुट पैरामीटर क्या है. इसी तरह जो हम बॉडी में फीड करते हैं, जो हम डाल रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो डिसाइड करता है हमारा अंदर से जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होगा और उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी. सो क्वालिटी मटेरियल्स बिल्ड विद लो डेवलप स्ट्रक्चरल इशू. सो अगर लो क्वालिटी है तो उसमें स्ट्रक्चरल इशू आएगा, लेस ड्यूरेबल, रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिपेयर्स. राइट? Unhealthy. Similarly, same philosophy goes for your food also. Versus, if
इफ अगर उसकी जो मटेरियल्स है वो अगर स्ट्रांग है एंड द चॉइसेस दैट यू मेक इज करेक्टेड, द सेम लॉजिक गोज टू योर बॉडी ऑल्सो. सो अगर आपके बॉडी में द राइट सेट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो इनसॉल्युबल फाइबर है, अगर ये सारी चीजें अगर सही होगी तो आप देखेंगे कि जो इनपुट मटेरियल है जब वो सही होएगा तो ओवरऑल आपकी बॉडी भी सही होगी. एंड नॉट ओनली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर weight, also it is going to impact your rest of the lifestyle disorders, you know. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को करने के लिए. Now, this is how our food plate should look like. Now, the people who are a part of the WhatsApp community, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आपके हेल्थ बडीज, हमारे मेंटोर फारूक एंड अनाइटा तारापुर, आप देखेंगे कि वो लोग इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको इनपुट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं. द रीजन बीइंग कि जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हो, यू स्टार्ट सीइंग दिस, यू नो, व्हाई दिस सब्जेक्ट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, यू नो. आप देखिए हमारे पुराने ज़माने की वोकैबुलरी क्या थी. पुराने ज़माने की वोकैबुलरी थी दो पराठे खा के चले जाना, थोड़ा एक गिलास दूध पी लो. हम कभी ये नहीं बोलते थे कि आज प्रोटीन खा के चले जाना हो, जरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले लो, हैव यू टेकन योर फाइबर ऑन टाइम, यू नो. नाउ इज द टाइम बिकॉज ऑफ टू रीजंस. Food by default had the right set of nutrient in it, and our stress and our other level was not so chronic जो आज की तारीख में. Versus now, आज अगर आप आलू के पराठे चले खा के चले जाओगे तो शायद आपको आलू तो मिल रहा है बट वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जो उसके अंदर होना चाहिए. बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस द न्यूट्रिशन कंटेंट हैज गॉन डाउन. हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू फोकस ऑन योर फूड प्लेट. एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो होनी चाहिए. जैसे वो नहीं है जब ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो एक बेसिक फर्स्ट एड आना ही चाहिए, मैंडेटरी है. उसी प्रकार ये वो चीज़ है जो हर घर में एक बेसिक फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए आज की तारीख में. राइट. 13% आपके फ्रूट में, आपके प्लेट में फ्रूट्स होने चाहिए. 7% एग, फिश, मीट, पल्सेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. 25% कर्ड या प्रोबायोटिक होना चाहिए. 2% नट्स एंड सीड्स होने चाहिए. 2% of the plate should have fats and oils, right? Green leafy vegetables, cereals. ये सारी चीज important. This is how your plate should look like. This is the ideal scenario of a right food plate जो है ऐसा होना चाहिए. Now, how protein supports in weight management. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को आ रहे हैं. प्रोटीन का क्या रोल है हमारे वेट मैनेजमेंट में. जो हमारा बॉडी है, राइट फ्रॉम द हेयर टू एवरीथिंग, एवरीथिंग, प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, राइट. सो एक जो प्रोटीन रिच डाइट होता है वो क्या करता है, वो जो फूड की थर्मोजेनेसिस है उसको इम्प्रूव करता है. राइट. सेटाइटी हॉर्मोन्स है वो इसको इम्प्रूव करता है. मेटाबॉलिक पाथवेज जो है उसको इम्प्रूव करता है. जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको इम्प्रूव करता है. सो जो प्रोटीन रिच फूड जब आप लेते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती है. आपके जो क्रेविंग्स है, कई बार आप देखेंगे कि एक बार खाना खाने के बाद फिर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है. जब आप स्वीट खा लेते हैं तो सॉल्ट की क्रेविंग होती है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप थोड़ा सा चिप्स खाइए और फिर बार बार वो खाने का मन होता है. ये जो सारी चीज़ें हैं प्रोटीन इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. So protein is very, very important. Now, what type of protein should we be looking at? Is protein good or bad? ये सारी चीज़ अभी हम briefly cover करने वाले हैं. And hence protein plays a very, very vital important role in your weight management. Right? Fiber का क्या role है? Now, mostly we get fiber from salads, fruit, but what about the water soluble fiber? So फाइबर का क्या रोल है. सबसे पहले ये रोल है कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये उसको नीचे लाता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जो भी फूड हम खाते हैं सडनली उसकी वो जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करता है. सडन स्पाइक देता है फिर सडन ड्रॉप भी करता है. ये पूरे प्रोसेस है ये उसको लोअर डाउन करता है. सटाइटी जो लॉन्ग थोड़ी देर तक जो आप फील करते हो कि आपका, यू नो, अगर आप फाइबर रिच फूड नहीं खा रहे तो क्या होगा. आपने एक लड्डू खाया, अब आपको दूसरा लड्डू खाने का मन करेगा, थोड़ी देर के बाद में तीसरा खाओगे. आपने दो रोटी खाए हैं, आपको मन नहीं मानेगा, आपको एक और रोटी खाने का मन करेगा. फिर जब आप प्लेट रखने जाओगे आपको लगेगा नहीं, फ्रिज खोल के देखता हूँ और क्या खा सकता हूँ. नाउ दिस इज ऑल नॉट योर हैबिट. दिस इज समथिंग जो बॉडी नीड्स नरिशमेंट, प्रोटीन, फाइबर वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए ही हो रहा है. आपका जो गट हेल्थ है, राइट, वो इंप्रूव होता है. जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है. राइट. आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके फूड इंटेक को कम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइबर का रोल प्ले करता है. सो फाइबर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड मोस्ट मिस्ड न्यूट्रिशन. बिकॉज हमें फील होता है कि हमें फाइबर मिल रहा है, बट जेन्युइनली अगर आप देखेंगे फाइबर इज द मोस्ट इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट इन आवर फूड प्लेट टुडे. So you will understand that
how you can improve the fiber thing in your body, in your food plate, and hence in your body. गट हेल्थ, फाइबर की बात कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गट हेल्थ की नहीं बात करेंगे? सो जो गट हेल्थ है इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं. नॉर्मली ये जो रेशियो होता है विच इज गुड बैक्टीरिया, दिस शुड बी अराउंड लाइक व्हाट 85%. द बैड बैक्टीरिया शुड बी अराउंड 15%. बट बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेक, the habits that we develop, gradually our bad bacteria goes up and our good bacteria comes down. I'll give you a very classical example. We have a 2-year-old kid in my family. Now, this little kid had issues, right? अभी पीछे बहुत सारे लोग were under the weather and the kid had loose motion and all the stuff. एंड फाइनली 2-3 दिन के बाद में द किड वॉज फाइन, किड ठीक हो गया. अब जब किड ठीक हुआ तो मामा ने थोड़े से जेम्स खिला दिए बच्चे को, ये सोचते हुए कि बच्चा 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं है तो एक काम करते हैं, थोड़े से जेम्स खिला दिए, थोड़े से चिप्स खिला दिए कि नहीं नहीं बच्चे ने कुछ खाया नहीं है. इमिडिएटली विद इन अ कपल ऑफ आवर्स बच्चा दोबारा बीमार हो गया. एंड आज जब डॉक्टर को जब पूछा और जो सारी चीजें हुई, व्हाट दे रियलाइज वाज इट इज बिकॉज ऑफ द गट हेल्थ. अभी गट हेल्थ इंप्रूव ही हो रहा था तब तक आपने उसने चिप्स और ये सारी चीजें डाल दी दोबारा से, एंड द गट हेल्थ अगेन वेंट बैड. So it is very, very important to understand what is the gut health. Now, if your gut health is healthy, you will see this cravings, this weight management, and बहुत सारी other चीजें will be under control if you just focus on your gut health. And that's what important it is, how important it is. Right. Now, how vitamins and minerals help in weight management, you know? So deficiency of vitamin and mineral. Now imagine करिए ये deficiency और ये morning में आप breakfast नहीं कर रहे हो. So imagine करिए morning में जब आप breakfast नहीं कर रहे हो तो vitamin और mineral ऐसे ही body में कम है. So क्या होता है उससे, अगर वो कम होगा तो जो आपका hunger है वो बढ़ने लगेगा, hidden hunger. इंक्रीज इन योर एपिटाइट, हायर फूड इंटेक होने लगेगा. एंड नॉर्मली जब एपिटाइट फूड इंटेक होता है इट इज नेवर फॉर हेल्दी फूड, इट इज ऑलवेज फॉर द अनहेल्दी फूड. सो in this scenario, when the nutrient deficiency is there in your body, trust me, your choices for not good food will go up. You will feel more cravings for burger and fast food and all those stuff. You know, कभी भी एक cravings फास्ट फूड की होती है. यू विल नेवर गेट क्रेविंग कि चलो जी सूप पी लेते हैं थोड़ा और सैलेड खा लेते हैं. दिस क्रेविंग इज ऑलवेज फॉर नॉट द हेल्दी फूड. एनर्जी imbalance, disruption of optimal body function of the body, and as a result you will gain weight. But what happens when the vitamin and mineral is at the optimum level in your body? The appetite is regulated, you have got adequate food energy balance and all the stuff, right? So hence it is very, very important to focus protein, fiber, vitamin and mineral in your food. What you eat, benefits of the meal replacement. Now कुछ लोग ऐसा होता है कि आप कम कर रहे हो बट आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से यू नीड द राइट सेट ऑफ एनर्जी, यू नीड द राइट रेट ऑफ विटामिन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मील रिप्लेसमेंट का क्या रोल है. You know, we follow this very very strictly. Most of the times I do take meal replacement in the evening, right? उससे फायदा क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो ड्रॉप नहीं हो रहा है. बिकॉज न्यूट्रिशन ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी का जो एक्चुअल पैरामीटर्स है, जो वाइटल पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव होगा. एंड यू आर नॉट गोइंग ऑन अ कंप्लीट डाइट. तो आप फूड इंटेक को बैलेंस कर रहे हो बट विद द हेल्प ऑफ मील रिप्लेसमेंट. सो मील रिप्लेसमेंट के बेनिफिट्स क्या है? ईज ऑफ एडहेरेंस, कंट्रोल्ड कैलोरीज, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सैटिस्फैक्शन. नॉर्मली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ये बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट हो जाता है. आपको कुछ जंक खाने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन हैव दिस, राइट. नाउ फसाई के कुछ रेगुलेशंस है इसके ऊपर. एंड यू नो कि इसमें एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, विटामिन मिनरल कितना होना चाहिए, फाइबर कितना होना चाहिए. सो गवर्नमेंट ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई है दैट मील रिप्लेसमेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर है तो उसके गाइडलाइंस क्या होने चाहिए. ये कुछ उसके गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं. नाउ वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट फ्रॉम न्यूट्रलाइट we have all these things available to you: protein, fiber and this meal replacement. The meal replacement comes in both the flavor vanilla as well as chocolate. Now what is the benefit of this? The benefit of this is you are reducing that gap called nutritional gap. सो जो गैप है जो न्यूट्रिशन की, जब वो गैप रिड्यूस होने लगती है आप देखेंगे आप अपने आइडियल स्टेट पे आप पहुंच जाते हो जो आपके लिए राइट है. राइट. सो ऑल प्लान प्रोटीन है, वेट मैनेजमेंट शेक है, न्यूट्रलाइट फाइबर है. नाउ जब भी मुझे स्वीट की क्रेविंग होती थी मैं थोड़ा सा ये ले लेता था. या राइट. सो जो विटामिन मिनरल है, जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो आप इंश्योर कर रहे हो कि करेक्ट है.
right? So these are the, again, the with the clean label का मतलब है कि this is absolutely right for your body type, and जो इसके ingredients है, they are absolutely green, so there are no added preservative in it, there is no artificial colors, no artificial flavor इसके अंदर है. So get in touch with your health buddy and they will explain you more that what is the importance of this and why one has to follow this, right? Now, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वेट मैनेजमेंट में, दैट इज आर यू प्लानिंग योर मील इन एडवांस, राइट? बिकॉज अगर आप नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर आपने प्री प्लान नहीं किया है, यू आर गोइंग टू मेक नॉट सो हेल्दी चॉइसेस अगर आपने प्री प्लान नहीं किया. देखिए, शॉर्टकट में कभी भी हेल्दी चॉइसेस नहीं आ पाती है, नॉर्मली अनहेल्दी चॉइस की तरफ हम जाते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफ यू प्लान अ मील इन एडवांस? यू विल ईट इन अ कंट्रोल्ड वे. You will reduce the impulsive eating habit. It saves times and reduces stress. It is cost effective because अगर आप इसको प्री प्लान करके रखेंगे तो आप cost effective कर सकते हैं. It supports your weight management goals and it promotes healthy habits, encourages mindful eating and structured approach towards nutrition. See, this is very, very important. Uh, I meet a lot of people who follow this diet program. हम ये diet program कर रहे हैं, वो diet program कर रहे हैं. And my main worry is it is not about the diet, it is about the nutrition content that you're getting through those diets. Because if you will not focus on this structured approach towards nutrition, you will end up into some other complications. And you don't want to be in that situation, right? So this is the last slide for the eve. Shine every day. Start every day with gratitude and optimism. Have your nutrition on time, because nutrition is something which cannot be ignored now because of the lifestyle challenges that we are looking every day. And this is a subject that cannot be. अब इसको और ज़्यादा साइड में नहीं रख सकते. Now this is the important subject of the day now. Have your intentions and visualize and set clear intentions and your goals. I hope you learned something new today. I mean, while presenting this, I got a lot of things refresh ho gaya mere liye, and it became like priority mein aa gaya. And I hope you are exercising every day and daily because this is very, very important. So have a clear cut goal, and let's join hands with Farooq in this whole mission. Har Ghar Tandurust, Har Ghar Medicine Free. And let's start focusing on this whole approach towards holistic health, because this is what will, if you have a healthy life and a happy life, that's the way to live a life. So thank you very much. Over to Ruchita. And yeah, one thing very, very important. Next Friday, we are going to have a very, very important session with Farooq. And moreover, this session will be more like it'll be more like open house. Then we can ask Farooq the questions and everything. So be there for next Monday and next Friday, because next Monday हम इस batch का last session होने वाला है. And then next Friday we are going to have this open house with Farooq, and where you can get your doubts cleared. You will get a lot of insight. When a lot of people ask this question, there is a lot of information that we get to learn. So thank you very much. Over to Ruchita. Thank you so much, Raj. That was indeed very helpful. I hope everyone has taken note of what changes they are going to make, and I'm sure all of us will benefit from just taking more control over our health, whichever form it may be. Like, if anybody has any question, they can raise their hands. And like Raj said, let's all join in on Friday. We have a very, very amazing session which is going to be very informative. So let's all make sure we are there on time, and we have our near and dear ones joining in as well. Thank you so much. And Monday also. And Monday also. And Monday also. Absolutely. Thank you so much. You've been a great audience. I do not see any hands raised, so we'll close it here. See you in the next session. Good night. Stay safe.